Okay, so good evening, people. This is Karthik here, and today I'm gonna inviting a guest. But before we invite our guest, let me tell you a few things about her. So her name is Mrs. Gayatri Sharma, and actually there's a story behind it. How do I know about Gayatri Sharma? Okay, so uh, few years back, I guess, 1 or 2 years back, I was actually surfing on the internet on Google, and there actually I found about this picture of a couple, and they were actually, beautiful couple. I've seen lot many transformations as of now till now, but this was something different. This was like I've never seen a couple being transforming together, okay, in their transformation journey. So I'm inviting now Mrs. Gayatri Sharma. I'm just waiting for her to just join my live forum. So till then, so it was back then I searched about her, and then I came to know about her. So she is really talented. Being a social media influencer, she is an award winner, personal trainer as well. So I'm just waiting for her to join, and let me see if she's going to join in a while. She'll be joining in a while. Okay. So amazing, brilliant transformation she has done. If you look at the picture, her before and after picture, that was really brilliant. A couple, husband and wife, both have transformed themselves together in this journey. So that actually, caught my eye, and I just wanted to take an interview of them. I just wanted to talk to them that what exactly they did. Transformation is something which never impresses me, because I know that it takes time. It does take a lot of efforts, but most of the time when you see in any social media, like if you're using a social media, this platform, okay, so you'll see many people who are uploading this transformation pictures in Instagram or Facebook or any platform, YouTube, but 80 to 90% are almost the fake. You will just cannot, you cannot transform yourself in just 1 month or 2 months. It's definitely take time. गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। बस बहुत है। आप कैसे हो? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा लाइव फोरम ज्वाइन किया, बिकॉज मैं आपकी स्टोरी से काफी इम्प्रेस था। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने ऑडियंसेस को यही बता रहा था कि मुझे आपके बारे में कैसे जानने को मिला। सो बेसिकली कुछ साल, एक आध साल पहले की बात है। तो आई वाज जस्ट सर्फिंग ऑन द इंटरनेट एंड जस्ट गूगल पे सर्फ कर रहा था, एंड व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग अप, मुझे एक स्टोरी देखने को मिली जिसमें एक कपल का ट्रांसफॉर्मेशन था। सो वैसे बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो आपको कहीं मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बट दिस वाज एक्चुअली समथिंग डिफरेंट। मैंने कभी भी किसी कपल को एकदम फ्रॉम बिफोर एंड एकदम फ्रॉम आफ्टर अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। या तो फोटो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या तो कुछ और होता है, बट कपल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो दैट एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। सो मैं इंट्रोडक्शन लोगों को दे देना चाहूंगा, मैं आपके बिहाफ में ही दे देता हूँ। So you are actually a social media influencer. Okay, आपको एक अवार्ड भी मिला है, वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड। You are a certified personal trainer. You are a nutrition consultant. You are a transformation specialist, and you are a sponsored athlete of One Night Supplement as well. And you own a gym. You are the founder and CEO of Team Sparta. And you are a wife, a mother, a housewife, as well as a coach. So बहुत सारी खूबियां, बहुत सारा टैलेंट है मैम आपके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए, जैसे आपने कैसे शुरुआत की और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। कार्तिक, फिटनेस में मैं अपने हस्बैंड के पीछे आई थी। मेरे हस्बैंड फर्स्ट फिटनेस के इंडस्ट्री में आए थे। वो हमारे फैमिली में मेरी मम्मी जी को, मेरे फादर इन लॉ को, दोनों को डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो वो बस ये सब चीजें चलती रहती है, आपको पता है, जेनेटिकली। तो उसी डर से उन्होंने फिटनेस को अपनाया, और जब ये फिट हुए, इनकी इंस्पिरेशन से ही मैं फिट हुई। मैं चलो ये इतना कर सकते हैं, इतना जॉब और ये सब काम संभाल के भी खुद को फिट रखने के लिए जिम जाना, इतना डाइट फूड लेना और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर
थी और फिर मुझे लगा अगर मैं फिट रहूंगी तो हम दोनों तो फिट होंगे ही, हमारे पीछे बच्चे भी फिट होंगे और मैं अपनी फैमिली को जी, भी इस हिसाब से हेल्दी फूड खिला पाऊंगी और उनका बिल्कुल मेंटल लेवल चेंज हो जाएगा। इसीलिए जी। हमने स्टार्ट किया। दैट्स डेफिनेटली ग्रेट मैम। सो जब आपने स्टार्ट किया, जब आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जो एक मोटी एक फीमेल को या तो वेमेन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपने क्या क्या फेस किया और आपने क्या को फेस करने ही पड़ते हैं, चाहे वो मोटी हो या नहीं हो वो बात की बात है। और मेन थिंग ये है कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो जी, आपको चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। आपको फैमिली को भी टाइम देना होता है, आपको बच्चों को भी टाइम देना होता है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी होती है। उसके बाद आप ये ड्रीम्स और आपको जो भी फॉलो करना है कीजिए। तो बस मैंने ये किया, मैंने अपने ड्रीम्स को भी फॉलो किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा किया। दोनों को साथ लेके चली और टारगेट अचीव किया। दैट्स रियली गुड मैम, दैट्स रियली अमेजिंग। मतलब इस एरा में एक्चुअली में अभी भी फिलहाल ऐसी सिचुएशन होती है। आई मीन आपने तो बहुत ही अच्छा मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपके हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव थे। बहुत सारे ऐसी फीमेल्स है जिनको घर से इतना सपोर्ट नहीं होता, जो उनके लिए मतलब इतना भी मतलब एक इश्यू होता है कि वो जिम में जाके वर्कआउट कर सके। काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यदि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी वो लोग नहीं जा सकते। और बहुत सारे मिथ भी होते हैं कि वेट ट्रेनिंग को लेके मतलब कोई भी एक फीमेल होती है अगर वो जिम में विजिट करती है तो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ट्रेडमिल्स। यस, सो वो यही ट्रेडमिल्स और सोचती ये है कि सारे अब जो मैंने कार्डियो इक्विपमेंट्स होते हैं, जी, तो उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं और ग्रुप ट्रेनिंग को नहीं। तो इसके बारे में मैम आपका क्या कहना है? कार्तिक देखो, अगर सपोर्टिव फैमिली की बात है तो आई एम लकी कि मुझे बहुत ही सपोर्टिव फैमिली मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सपोर्टिव है। लेकिन ये है कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो यही पूछते हैं मैम अगर जिम नहीं जा सके तो उस टाइम क्या करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फिट नहीं हो सकते, अगर जिम नहीं ज्वाइन करो तो आप घर पे होम वर्कआउट कर सकते हो। आपको एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है तो आपको घर के वर्कआउट करने में तो कोई है नहीं रेस्ट्रिक्शन। अब अपने लिए बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगते ही हैं हर चीज में। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको थोड़ा एफर्ट देने होंगे। इसके लिए आप थोड़ा टाइम निकालिए और थोड़ा घर पे वर्कआउट कीजिए, थोड़ा एक्टिविटी लेवल, ब्रिस्क वॉक, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अगर आपको कुछ करना है तो। जी, जी, बिल्कुल। सो इसमें क्या है मैम कि कई बार ऐसा होता है कि अ, अगर हम घर पे भी वर्कआउट करते हैं, जैसे कि हमने डिसाइड किया कि चलो जिम तो नहीं ज्वाइन कर सकते तो हम घर पे ही वर्कआउट करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी आई मीन लोग जो है जिनको वेट लॉस करना है, सो वेट लॉस के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि या तो हम वॉक पे जाए, या तो हम थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर ले, या तो मे बी थोड़ा सा रनिंग कर ले या स्किपिंग रोप्स कर ले। सो कोई भी आई मीन जहां तक फीमेल की बात आती है कि कोई भी स्क्वाट्स है, पुशअप्स हो गया, ये सारे वर्कआउट्स पे फोकस ना करते हुए एब्डोमिनल वर्कआउट और कार्डियो पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो क्या ये सही करते हैं या क्या उन्हें स्ट्रेंथ वर्कआउट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? नहीं, कार्डियो तो बिल्कुल भी राइट ऑप्शन नहीं है कार्तिक, आपको भी पता है। क्योंकि अगर कार्डियो सिर्फ कार्डियो करेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो मसल लॉस होता है ऑब्वियसली। तो आपके पास मसल्स होंगे तभी तो फैट लॉस इजीली होगा। इसलिए मेरा इनके लिए यही है सजेशन कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अगर नहीं जा सकते जिम तो आप घर पे वर्कआउट करो। एटलीस्ट आप बॉडी वेट, बहुत सारे वर्कआउट अवेलेबल है, मेरे ऐप में भी है और हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर फॉर्म के साथ आपको पता चल जाएगा कि भी वर्कआउट कैसे करना है आपको। लेकिन आप थोड़ा फोकस करो। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन आप वर्कआउट भी करो साथ में। पुशअप करो, बॉडी वेट स्क्वाट कीजिए, बहुत सारे क्रंचेज है, आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कीजिए, लेग रेज कीजिए, सारा कुछ कर सकते हो आप। मैंने बस ये है जी, थोड़ा खाने का ध्यान रखो। आपको थोड़ा हेल्दी फूड खाना है, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे नहीं जाना है कि बस बहुत सारी डेफिशिट कर ली, कुछ नहीं खाया दिन भर, क्रैश डाइट फॉलो किया, ऐसा कुछ नहीं करना है। हेल्दी जी, डाइट फॉलो करो, थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ और वर्कआउट जरूर करो। जी, जी। सो एक और क्वेश्चन था जो मुझे मतलब मुझे भी काफी सारे लोग पूछते हैं, बिकॉज मैं भी एक जिम संभालता हूँ। सो बेसिकली आई एम मैनेजर एट अ जिम एंड आई ऑल्सो टेक पर्सनल ट्रेनिंग एज वेल। तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। तो एक क्वेश्चन हमेशा होता है हर क्लाइंट्स के दिमाग में कि कब तक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कब तक मैं ऐसे मतलब मेरा वेट लॉस करूंगा, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने, तो ऐसा फिक्स कितना टाइमिंग वक्त लग सकता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कार्तिक।
सबके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और पेशेंस चाहिए होता है। अगर आपने इतना वेट गेन किया है पिछले 5 साल से, 3 साल से या 10 साल से, तो उसको थोड़ा टाइम तो दो, एटलीस्ट आप 5-6 महीने तो दो, या कंसिस्टेंसी आप 3 महीने करो तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जब रिजल्ट दिखेगा तो आप उसको कंटिन्यू करोगे। और तो बस आप एक टारगेट लेके मत चलो कि इतने टाइम स्टेज में मुझे करना है, आप बस ये सोचो मुझे करना ही है। आप अगर उसको गोल लेके चलोगे कि नहीं मुझे करना है, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे या फिर 6 महीने लगे, टाइम इज नॉट मैटर, बट आपको करना है तो हो जाएगा। बिल्कुल सही माइंड मत लीजिए कि बस मुझे बाउंडेशन में मत रखो कि मुझे इतने ही टाइम में करना है। खुद को बाउंड कर लिया तो आप उसके आगे सोच नहीं पाते। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि लोग शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे होते हैं, इस चीज को, फिटनेस को इस तरह लेते हैं कि लाइक मतलब कुछ टाइम के लिए करना है और मैं जब फिट हो जाऊंगी तो मैं छोड़ देना मुझे। तो मेरा तो मानना ऑब्वियसली, और यही चीज फैक्ट है कि फिटनेस फॉर लाइफ, इट इज नॉट टेम्पररी। अगर आप कोई भी चीज करते हो तो उसको आप कैसे लाइफ टाइम तक सस्टेन कर सकते हो, चाहे आपकी डाइट हो चाहे फिटनेस हो। तो ये दोनों चीजों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फिटनेस में इतना ज्यादा डेडिकेशन दे देते हैं कि अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स इन सारी चीजों को टाइम नहीं दे पाते। तो ये भी चीजें गलत है। तो दोनों इसके बीच में, फिटनेस हो गया, हेल्थ हो गया, अपना रिलेशनशिप हो गया, सबके बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है। अब रही बात फिटनेस की, एक और चीज, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जो कि मुझे उसका आंसर पता है, लेकिन मैं आपसे इंटरेक्शन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो भी मेरी फीमेल क्लाइंट है या जो भी फीमेल्स है जो अभी देख रही है लाइव, आप जब ये चीज बोलोगे तो ज्यादा वेटेज बढ़ जाओगे। बिकॉज मी बीइंग द मेल ट्रेनर, अगर मैं किसी को ये चीज एडवाइस करता हूँ कि फीमेल को, तो शायद मेरी बात पर विश्वास ना करे। सो एक रूटीन होता है। अगर कोई भी फीमेल क्लाइंट है, सपोज जिम ज्वाइन करती है, तो उनका एक रूटीन होता है। सपोज कुछ दिन वो ट्रेनर को फॉलो करेंगे, ट्रेनर वेट ट्रेनिंग भी करेगा, लेकिन ट्वाइस अ वीक कार्डियो रहता है और एब्स रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा देखा है कि ट्वाइस अ वीक उनको कार्डियो और एब्स करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर थिंकिंग राइट, उससे हमारा वेट लॉस जल्दी होगा, स्क्वाट रिडक्शन होगा, फैट जल्दी बर्न करोगे। और बाकी के 3 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं, या तो सपोज ऐसा होता है कि वो 3 दिन स्किप कर देते हैं और सिर्फ कार्डियो ही करते हैं, और या तो सिर्फ 6 के 6 दिन कार्डियो और एब्स करते हैं। तो आप प्लीज उस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करिए और समझाइए मैम कि ये चीजें गलत है तो क्यों गलत है, और ये चीज सही है तो क्यों सही। पहले तो कार्तिक मैं ये कहूंगी कि आप बहुत ही अच्छा करते हो और बहुत ही अच्छे ट्रेनर हो जो आप लेडीज को प्रमोट करते हो वेट ट्रेनिंग के लिए। बाकी मैंने ऐसे भी देखा है, मेरे क्लाइंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम हमारे जिम ट्रेनर तो बोलता है आपके लिए वेट ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, आप तो कार्डियो करो। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप उनको वेट ट्रेनिंग के लिए पुश करते हो। और दूसरा, अगर आप कार्डियो करते भी हो, सारे क्लाइंट्स के लिए कह रही हूँ, अगर आप कार्डियो करते भी हो तो आप आफ्टर वर्कआउट करो। पहले आप वर्कआउट कर लो, वेट ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप 10 मिनट कार्डियो करते हो तो दैट्स इनफ। वो आपका कार्डियो भी हो जाता है और आपके मसल भी प्रिजर्व रहते हैं जब आप वर्कआउट करते हो। जब आप वर्कआउट कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है आपकी, तो जब आप रेस्ट कर रहे हो उस मोड में भी आपका वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एक्टिविटी करने की नीड नहीं है। जैसे आप 1-1 घंटा ट्रेडमिल कर रहे हो तो वो काम जी नहीं जी। है। इसमें आप कैलोरीज देख रहे हो मशीन के ऊपर, क्या हाँ 200 कैलोरी बर्न हो गई मेरी, लेकिन ये कैलोरी मैटर नहीं करती है। घर जाके आप जब खाते हो तो वो वापस आ जाती है, रीगेन होता है। इसलिए आप घर पे भी काउंटेबल खाना खाएं और वर्कआउट पूरा कीजिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, तो आपका उल्टा अच्छा फैट लॉस होगा और वो लंबे टाइम तक चलता है और ये हेल्दी भी है। सिर्फ कार्डियो करने से कुछ नहीं होता है। जी मैम, बहुत आपने, आपकी बातों से काफी कुछ फर्क पड़ेगा। जितने भी फीमेल्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो हमें देख रहे हैं, तो काफी कुछ ये उन्हें सीखने को मिलेगा। बिकॉज आप बोलेंगे एज अ बीइंग द फीमेल ट्रेनर, तो आपकी बातों से, आपकी बातों में वो चीज, वो बदल रहता है मैम। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप, मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करूं और उनकी हेल्प करूं उनके अचीव गोल करने में, हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि क्या है ना, नेट पे बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। लड़कियों को वर्कआउट नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड, और आपको क्विक रिजल्ट मिल जाएंगे, क्विक रिजल्ट मिलेंगे फटाफट 10 दिन में चर्बी पिघलाइए, ये कीजिए वो कीजिए। तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसलिए आपको हमेशा अच्छे ऑप्शंस ढूंढने चाहिए और लॉन्ग टर्म लेके चलिए आप फिटनेस को। फिटनेस कोई ऐसा तो है नहीं आज किया कल छोड़ दिया, एज ए लाइफ स्टाइल।
चाहे वर्कआउट हो चाहे डाइट हो, सब लाइफ स्टाइल बन जाएगी। तो आपका फैमिली, फ्रेंडशिप और अपना डाइट फॉलो सब इजीली होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी प्रॉब्लम एक तब और आती क्वेश्चन है। करना चाहूंगा। जैसे कार्डियो के बारे में हम लोग बात करें, कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा कि आप अपना जो ये वेट ट्रेनिंग है वो भी करिए, साथ ही साथ आप कार्डियो भी कर सकते हो 10 मिनट। सो कार्डियो बिफोर करना चाहिए या आफ्टर करना चाहिए? आफ्टर बेनिफिशियल रहता है कार्तिक। जैसे आपने वेट ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद अगर आप 10 मिनट के कार्डियो होता है, जिससे आपका फैट लॉस भी इजीली होता है और आपका बॉडी का लेवल एकदम चेंज होता है, इंटेंसिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये सजेस्ट करती हूँ कि आप HIIT लेवल का कार्डियो कीजिए, जिसमें आप जी 30 सेकेंड कार्डियो फास्ट स्पीड में किया, फिर आपने रेस्ट कर लिया। कोई जरूरी नहीं है आप जिम जाओगे तो ही कार्डियो होगा, आप घर पे भी कर सकते हो। स्किपिंग जी सबसे बेस्ट कार्डियो है। 10 जी 30 सेकेंड वो रेस्ट, 30 सेकेंड आपने स्किपिंग की, तो सबसे बेस्ट है ये। और आप जी फास्ट एक ही जगह पे खड़े होकर भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं करने के जी लिए। लेकिन बस जी लाइफ मैम। सेविंग कीजिए, एक ही चीज के पीछे नहीं, बस कार्डियो करने से ही फैट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिडक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, आपको भी पता है। जी जी मैम, बिल्कुल सही कहा मैम। इनफैक्ट मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, और ये फैक्ट एक्चुअली सही है। लोग जो जिम में जो कार्डियो मशीन्स होते हैं, ज्यादातर जो अच्छे मतलब जो भी बहुत बड़े बड़े जिम्स होते हैं, वहां पर आपको कार्डियो मशीन ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, और इसमें एक्चुअली बेनिफिट्स ट्रेनर्स का ही होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सी कार्डियो का वैसे आपको कुछ करना नहीं होता है। आप मोस्टली कार्डियो में या तो चलोगे या तो दौड़ोगे, सामने आपके फोन रखा होगा या तो टेलीविजन होगा, तो आप बस उसको देख रहे हो और दौड़ रहे हो, और ट्रेनर को कुछ बताना नहीं पड़ता है। सो ट्रेनर को कोई एफर्ट नहीं लग रहे, वो सिर्फ कार्डियो करा देंगे और थोड़ी देर बाइसिकल करा देंगे, स्किपिंग करा देंगे और बोलेंगे कि आप जाओ करके। अब इसमें क्या होता है ना, एक ट्रेनर है ना, ट्रेनर जो अपनी जो स्किल्स है, वो जो नॉलेज है वो पहुंचा नहीं पाता है क्लाइंट्स तक, बिकॉज डेडलिफ्ट्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेसेस हो गया, ये सारी ऐसी कंपाउंड्स लिफ्ट है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसको सिखाने में काफी अच्छी फॉर्मिंग टेक्निक की जरूरत होती है और काफी एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मतलब आपको क्लाइंट्स के साथ ऐसे इंटरेक्शन करना है, उन्हें समझाना है कि क्लाइंट्स उस चीज को अच्छे से एफिशिएंटली कर पाए। अब इसमें क्या है ना, एफर्ट चाहिए और टाइम चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। और उसमें ट्रेनर का भी दिमाग खराब होता है, ट्रेनर का अपना माइंड उसमें इन्वेस्ट करना होता है, उसे समझाना होता है। तो ये चीजें लोग एक्चुअली में काम से बचने के लिए ये चीजें ज्यादातर लोग करते हैं। तो ये बहुत सारे जिम में ऐसा होता है और अभी भी चल रहा है। मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाते हैं और फिर वही कार्डियो वगैरह में बिजी कर देते हैं क्लाइंट को, और वेट ट्रेनिंग उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है, मिथ्स फैलती रहती है। हाँ, बस यही है कार्तिक, क्लाइंट को इसके लिए हमेशा तो लगता है। क्लाइंट्स को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, उनको खुद को, कि भी हमारे जी लिए मैम। क्या बेटर है, हमारे लिए वेट ट्रेनिंग बेटर है या हमारे लिए कार्डियो बेटर है। मेरे पास भी जी मैम। क्लाइंट आते हैं, हम और सर दोनों यही सजेस्ट करते हैं कि भी हम आपको कार्डियो नहीं करवाएंगे, ये आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहो तो मना नहीं है, आप जाते टाइम कर लेना, बट उससे पहले आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। और आप बिलीव नहीं करोगे कार्तिक, हमारे जो भी क्लाइंट हैं आते ही स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस यही चीजें सीखते हैं, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से करते हैं। गर्ल्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे 35 ईयर हो चाहे 45 ईयर हो, एज इज नॉट रेस्ट्रिक्शन। वो इजीली आके करती है वर्कआउट, और उनको इतना अच्छा फील होता है कि हाँ चलो लाइफ में कुछ किया है अपने लिए। जी मैम। थोड़ा बहुत क्लाइंट को खुद को भी देना होता है अपना एफर्ट, और अगर ट्रेनर अगर दे रहा है एफर्ट सिखाने के लिए, तो उनको भी सीखना चाहिए कि वो उनकी बेटर करने के लिए कर रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल सही कहा। दूसरा, उनको थोड़ा नॉलेज भी चाहिए इस चीज में, फिटनेस के लिए। सिर्फ आप कार्डियो से फिट नहीं हो सकते, तो फिट होने के लिए तो वर्कआउट करना ही चाहिए। आप जो शेप चाहिए आपको, जो आपको बॉडी का शेप चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए एकदम, तो उसके लिए तो वेट ट्रेनिंग ही बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एग्जैक्टली यही चीज एक्चुअली मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सारी चीजों को, क्योंकि अगर आप जिम की मेंबरशिप लेते हो तो अपनी जिम की मेंबरशिप को वेस्ट मत करो। जाओ जाके डंबल्स उठाओ, जाओ जाके बार्बल्स उठाओ, ओलंपिक बार से डेडलिफ्ट लगाओ, स्क्वाट्स लगाओ। अगर आपको नहीं आता है तो वो चीजें सीखो। यस, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऐसी स्किल्स है जो रातों रात आप नहीं सीख सकते। कई बार लोगों को कई महीने लग जाते हैं, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। बट जाओ जाके वेट्स लिफ्ट करो। अगर आप वेट्स लिफ्ट नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी मेंबरशिप को वेस्ट कर रहे हो, और बिकॉज आप कुछ सीख नहीं रहे हो।
जिम में जाके आप कुछ नहीं सीख रहे हो। तो यही चीज मैं एक्चुअली मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ, यही नॉलेज स्प्रेड करना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि लोग जितने भी हमारी फीमेल क्लाइंट्स है, जितनी भी फीमेल्स है, विमेन है, वो सब जाए जिम में, अगर घर पे ही वर्कआउट करते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस की जाए, उस पर ज्यादा एम्फेसिस दी जाए। अब मैम इसमें ये सारी चीजें तो क्लैरिफाई हो गई है। अब जैसे कुछ 5 फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे फिटनेस के 5 फंडामेंटल्स होते हैं। एक हो गया स्ट्रेंथ, एक हो गया एंड्योरेंस, स्टेमिना, ओके, एक हो गया अपना ये फ्लेक्सिबिलिटी, लीड एंड एजिलिटी। अब इसमें से आप स्ट्रेंथ को कहाँ पे रैंक करते हो मैम? मैं तो सबसे ऊपर करती हूँ, टॉप पे। सारी चीजें एग्जैक्टली। जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है अपनी अपनी जगह पे। एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए कार्तिक, लेकिन ये चीज है, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपका एंड्योरेंस लेवल भी बढ़ता ही है। जैसे आप पुशअप करते हो तो उससे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, स्क्वाट कर रहे हो अगर वेटेड, तो उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा ऑब्वियसली। आप बेंच प्रेस कर रहे हो तो उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो सारी जी। चीज। और फीमेल्स क्या सोचती है ना, हमें कहाँ जरूरत है वेट उठाने की। क्यों नहीं जरूरत है भाई, आप घर में वेट नहीं उठाते हो क्या? कभी आपको सिलेंडर इधर करना है, कभी आपको गेहूं का डब्बा इधर करना है, कभी ये करना है, कभी कपड़ों का टब उठाना है, बाल्टी उठाना है। तो आपको सारी चीजों में मेहनत चाहिए होती है, सब में ताकत लगानी पड़ती है। फिर आप क्यों घबराते हो ताकत लाने में? आप वर्कआउट करोगे, स्ट्रेंथ आएगी, तो आप इजीली ये उठाया इधर रखा, किसी की बुलाने की जरूरत नहीं। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। नहीं, बिल्कुल सही कहा मैम आपने, जब से बिल्कुल वेट सही ट्रेनिंग कहा। करने लगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आओ, खुद ही काम निपटाया, फिनिश। और ये बेटर भी है, इसमें आपका फायदा है। आप अगर वर्कआउट करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, उससे आपके बच्चे सीख रहे हैं आपसे। अब मेरी बच्ची 12 ईयर्स की है, वो भी वर्कआउट करती है, वो वेटेड वर्कआउट करती है, फिर ऐसे बॉडी नहीं करती है। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। मेरा लड़का है, वो भी वर्कआउट करता है, तो उससे क्या बच्चों का मेंटेलिटी लेवल बिल्कुल चेंज हो जाता है कार्तिक, कि अच्छा मम्मा भी यही कर रही है, पापा भी यही कर रहे हैं, तो करने से ये होता है, उनको राइट नॉलेज मिलता है। तो मेरा तो सारी फीमेल्स से यही मैसेज है कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ, थोड़ा अच्छा खुद के लिए करो। अगर आप ये जो कर रहे हो वर्कआउट के लिए, जो 1 घंटा है, बहुत बेस्ट टाइम होता है खुद के लिए। हैप्पीनेस का जो एक मोमेंट होता है, उसमें इतना अच्छा फील होता है, चलो कुछ लाइफ में खुद के लिए कर रहे हैं। बाकी सब तो अपन फैमिली के लिए कर रहे होते हैं ना, बाकी अपने लिए जी क्या करते हैं। बस यही एग्जैक्टली है, मैम। बस यही है। ओके, और तो ये जो पॉइंट आपने कहा, सॉरी, ये point आपने कहा ना कि आपके जो मतलब जो छोटी बच्ची वो 13 साल की है, तो वो भी आपके साथ वर्कआउट करती है, और मैंने आपके देखा भी इंस्टाग्राम पोस्ट में, मैंने देखा है वो चीज, तो वो काफी इंप्रेसिव है, और मतलब काफी खुशी हुई वो चीज जान के। तो मुझे ये चीज जानना है कि कौन सी एक चीज होती है किसी भी मतलब बच्चों को वर्कआउट करने की? टाइमिंग नहीं होता है कुछ भी। आप जैसे 8-10 साल के बच्चे हैं, एक्टिविटी लेवल चाहिए उनको, आप उनको कुछ भी एक्टिविटी कराओ, कोई जरूरी नहीं है आप वेटेड कराओ। आप उनको स्टार्ट करो बॉडी वेट वर्कआउट से, आप उनको योगा करवा सकते हो, कुछ भी करके एक्टिविटी बढ़ाओ, उनको दौड़ाओ, थोड़ा घुमाओ। ठीक है, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है कार्तिक, बच्चे क्या करते हैं, एवरी जी टाइम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये 3 चीजें हैं और वो उनके सामने है। तो इसलिए जरूरी है कि आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो और उनको एक्टिविटी लेवल चेंज कर दो थोड़ा। तो ये जो वर्कआउट कर रहे हैं, मेरे जितने भी घर में बच्चे हैं ना, सब मतलब सारे कर करके मुझे फोटो और वीडियो सेंड करते हैं। इवन क्लाइंट के बच्चे भी, कि देखो हमने ये किया है आज। तो एक अच्छा फील होता है, चलो बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, एक दूसरे को देख के होते हैं। एटलीस्ट उनका 1-1.5 घंटा मोबाइल से, एग्जैक्टली मैम। और ये बहुत जरूरी है, इससे उनका थोड़ा बिल्कुल चेंज हो जाता है मेंटलिटी। जी ओके मैम, एक और क्वेश्चन था जो मुझे आपको पूछना था, लेकिन मैं भूल गया। वेट ट्रेनिंग, जहाँ पर वेट ट्रेनिंग की एक और मिथ है कि फीमेल्स वेट ट्रेनिंग इसीलिए नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मैनली हो जाएंगी, मैनली हो उनकी जाएगी। मसल बन जाएगी और वो एकदम मेल्स की तरह दिखने लगेंगे। और एक और चीज ये है इसमें कि उनको अगर वेट लॉस करना है तो वो डंबल्स उठा के वेट गेन कर लेंगे, उन्हें ये दिमाग में रहता है वो चीज। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। ऐसा होता है, देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ कार्तिक आपके सामने। मैं कैसे अगर मेनली लग रही हूँ तो बता दो आप। बिल्कुल नहीं और मैम, ऐसा बिल्कुल। एक्चुअली नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप वर्कआउट करते हो डंबल बारबेल के साथ, अगर डेली प्ले कर रहे हो, तो आप उससे एक तो स्ट्रेंथ तो मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है,
आपकी बॉडी शेप में आती है और ऑलवेज आप ऑसम दिखते हो और इतना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता है इससे, क्योंकि आप इतना वेट उठा रहे हो तो आपको एटलीस्ट यही फील होता है चलो अब तो कोई सामने नहीं आने वाला। ये ऐसा ये सारे बिल्कुल मीम्स हैं कि वेट उठाने से बाइसेप्स तो मैनली हो जाएंगे या आपका लुक और ओवरऑल मैनली हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका शेप अच्छा हो जाता है। जैसा आप शेप देख रहे हैं, आप सुपर मॉडल को देखते हैं और चाहते हैं उनका जैसा होना, फिर आप कहते हैं मैं वेट नहीं पाऊंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उनका लाइफस्टाइल देखा है, आप उनको फॉलो कीजिए, उनको देखिए कि वो क्या क्या करते हैं। हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे वो हमेशा, और हमेशा वर्कआउट अपना कभी स्किप नहीं करते। ये दो चीजें बहुत ही ऑन पॉइंट रहती है और मैं भी यही करती हूँ। मैं कभी भी बाहर भी जाती हूँ सबको पता है खाना क्या खाना है, तो उसमें कोई वो भी नहीं है। और आप खाना है क्या, डाइट है क्या, घर का खाना ही तो है, बस उसको आप जी क्वांटिटी आउट कीजिए, अपने कैलोरी नीड के अकॉर्डिंग खाइए बस। कोई डाइट कोई होगा थोड़ी है कि बस बाहर से कुछ लाके खाना है। जी जी मैम, बिल्कुल बनाते सही हैं कहा मैम। डेली सो दाल चावल एक्चुअली रोटी सब्जी, बस यही तो खाने होते हैं। जी नेटवर्क इश्यू आ रहा है आई थिंक। जस्ट एक्चुअली सॉरी, मुझे बीच में कॉल आ रहा था इसलिए नेटवर्क इशू आ रहा था। ओके ओके। तो एक और सिचुएशन ऐसी होती है, ओके। सो एक और सिचुएशन ऐसी होती है फीमेल्स के केस में, जो भी जितनी भी फीमेल फैक्ट्री या जो भी फीमेल्स फिट होना चाहती है, तो एक मिथ हमेशा रहता है कि जैसे पीरियड्स हो गया, पीरियड्स के वक्त वर्कआउट करना सही है या नहीं है, वो आप बताइए इसके बारे में। देखो, मैं सारी फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, वर्कआउट करना नहीं करना बात की बात है। पीरियड्स में अगर गलत तो बिल्कुल नहीं है वर्कआउट करना, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, आपको कहीं पेन नहीं हो रहा है, क्रैम्प्स नहीं है, तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी लेवल लो है तो आप हैवी वेट मत कीजिए, आप लोअर वेट हैवी वेट कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, उल्टा आपको दिन भर के लिए स्ट्रेस नहीं रहेगा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है इस टाइम में, बहुत ही स्ट्रेस रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग में, ना चाहते हुए भी चलता है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं पीरियड से। तो इसलिए हमेशा आप सोचिए कि अगर आपको वर्कआउट करना है, अगर आपके पास क्रैम्प्स नहीं है, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है उन दिनों में, तो आप इजीली जाके वर्कआउट कीजिए। और अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है तो आप रेस्ट कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप रेस्ट कीजिए, एक दिन दो दिन, जब आपको बेटर फील हो आप जाके वर्कआउट कीजिए। मैं तो ओके हमेशा करती हूँ। यस, काफी ऐसे मतलब जो क्लाइंट्स है जो डेडिकेटेड होते हैं एंड जो डेडिकेटेडली वेट लिफ्ट करते हैं, आके अपने जिम में डेडिकेशन के साथ वर्कआउट करते हैं, मैंने कभी उनके साथ ये कभी भी इश्यू होते हुए नहीं देखा। इफ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, तो वो एक दिन या दो दिन की लीव ले लेते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं होते। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन होता है। और एक और क्वेश्चन इसी तरह का होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है, ओके, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको क्या वर्कआउट करना चाहिए, क्या वर्कआउट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरह के वर्कआउट करने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन रहने चाहिए? एक मिनट कार्तिक, आप आफ्टर प्रेगनेंसी का कह रहे हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे हो? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है जी। अब आपको आ रही है मैम? हाँ हाँ अब आपको आवाज आ रही हाँ है जी? हाँ बोलिए। सो हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो उसी के बारे में आप थोड़ा एनलाइट करिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का देखिए कार्तिक, ये है कि आपको कोच के अंडर में एनरोल होकर ही करना चाहिए। आपको एक सर्टिफाइड कोच, एक्सपीरियंस कोच, जो आप पे अगर टाइम वॉच कर सके, उसी के जी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अदरवाइज खुद से कभी नहीं, और हैवी वेट को बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अगर सजेस्ट करते हैं कोच तो आप कीजिए, और वो भी
वॉच, अगर आपको 20 वो अगर आपको वॉच कर रहे हैं तभी आप कर सकते हो। खुद से बिल्कुल नहीं ट्राई करना है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, और कोच के गाइडेंस से आप इजीली कर सकते हो, कोई मना नहीं है। आजकल तो ट्रेंड भी यही है कि आप प्रेगनेंसी में उल्टा जितना एक्टिव रहते हो उतना ही हेल्दी बेबी होता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, कम से कम 4 से 6 वीक, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो 4 से 6 वीक आप ओके इजीली रेस्ट कीजिए। और मेरे हिसाब से तो आपको 4 महीने कम से कम अपने बेबी के साथ एंजॉय करना चाहिए, मदरहुड एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद ही डाइट वाइट का चक्कर करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, तो बच्चे उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं 4-6 महीने तक। तो फिर अगर आप उसी में ओके अगर कैलोरी डेफिशिट में आ जाते हैं तो फिर बेबी के पास क्या जाएगा? इसलिए बाकी आप 4 से बिल्कुल 6 सही के बाद इजीली फॉलो कर सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है। सिर्फ अपने बेबी के हिसाब से बोल रही हूँ मैं। अगर आप अपने बेबी को अच्छा फीड कराना चाहते हो तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके दैट्स परफेक्ट मैम। ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हो, अपने डाइट का मतलब इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कैलोरीज को, तो आपकी बेबीज को क्या फिर न्यूट्रिशन मिलेगा? ये आपने बिल्कुल सही बात कहा। ये ध्यान देने वाली बात है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो और इसीलिए ये अगर आप फिट होने के चक्कर में अपने बेबी को भूल जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो 4-6 महीने तो एटलीस्ट 6 महीने तक आपका बेबी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। के बाद आप फिट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 6 महीने से ज्यादा क्या टाइम लगता है फिट होने में किसी को। और उसमें भी बहुत एग्जैक्टली ज्यादा रेस्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला, हमेशा ऐसे डाइट फॉलो करो जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, आप कहीं पे भी फॉलो कर सको, इजीली उसको लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सको, वो मैटर जी करता है। ओके मैम। एक और क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग एक एक टर्म यूज करते हैं वेट लॉस। ओके एंड जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, जो मतलब फिटनेस में काफी सालों से होते हैं, वो वेट लॉस को नहीं मानते, दे आर यूजिंग फैट लॉस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस मैम? इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो मैम? ऑफ कोर्स कार्तिक, वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत मेजर डिफरेंस है जो लोग एक्चुअली नोटिस नहीं करते हैं। क्या होता है ना, फैट लॉस में सिर्फ फैट लॉस होता है और अपन उसमें मसल प्रिजर्व कर सकते हैं, और लेकिन वेट लॉस में आप वेट भी जाएगा, फैट भी जाएगा, मसल्स भी जाएंगे, वाटर भी जाएंगे, और जो बॉडी में फ्लूइड होते हैं काफी, वो भी रिटेंशन होते जाते हैं। उनको बचाने के लिए अपन फैट लॉस पे फोकस करते हैं ताकि आपका जी फैट कम हो और मसल प्रिजर्व हो जाए। जी ये फैट लॉस इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन और जी आई थिंक बेस्ट। जी इसी की वजह से एक्चुअली मैं वेट स्केल, मुझे सही में पर्सनली मुझे वेट स्केल अच्छा नहीं लगता मेरे जिम में। मैं हमेशा वेट स्केल को अगर हो सके तो मैं छुपा देता हूँ, या तो उसकी पैटर्न निकाल देता हूँ कि लोग वेट ना चेक करते रहे। बिकॉज होता यही है कि डेली कुछ चेक मतलब करेंगे। 2 साइड लगाए, उसके बाद वेट चेक किया, जिम में आने के टाइम वेट चेक किया, तो जाने के वक्त भी वेट चेक करते हैं लोग। सो ये चीज सो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे, वेट लॉस एंड फैट लॉस, तो उसमें हमने न्यूट्रिशन पे जंप किया था। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या पार्ट प्ले करता है? तो आई नो दैट वेरी वेल, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन आपके वेट लॉस गोल्स में क्या पार्ट प्ले करता है? 100% न्यूट्रिशन ही प्ले करता है आजकल। 100% न्यूट्रिशन, 100% वर्कआउट, दोनों मिलके ही आपको 200% रिजल्ट देते हैं, और यही चाहिए होता है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको हेल्दी रहना है, तो आपको न्यूट्रिशन फूड ही खाने होंगे। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग स्पेशल फूड नहीं आते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ये फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, ये मैक्रोज देख लीजिए बस। सॉरी मैम, अगेन सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें कॉल आ गया। यस मैम, तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो डाइट के बारे में मैम। सॉरी, तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो सडनली नेटवर्क तो आ गया, मुझे कॉल आ रहा था इसलिए। तो न्यूट्रिशन क्या पार्ट करता है आपके वेट लॉस जर्नी? कार्तिक के न्यूट्रिशन 100% वर्क करता है, और वो ट्रेंड खत्म हो गया है जब आप बोलो कि 70% न्यूट्रिशन एंड 30% जिमिंग वर्क करता है। नहीं, 100% न्यूट्रिशन पार्ट और 100% वर्कआउट, ये दोनों मिलके आपको 200% रिजल्ट देते हैं, और यही जरूरी है। तो आपको न्यूट्रिशन एक्चुअली के मैम फूड खाने होंगे, और उसके लिए आपको कोई बाहर से कुछ करना नहीं है। फैट, प्रोटीन और कार्ब, इन मैक्रोज का ध्यान रखना है, पानी पूरा पीना है, फाइबर इंटेक ध्यान रखना है, बस ये हो गया न्यूट्रिशन प्रॉपर। तो बस आप क्वांटिफाइड क्रिटेरिया फॉलो कीजिए। जी एक्चुअली मैम, इसमें लोगों के दिमाग में ये रहता है कि लाइक 70% इज न्यूट्रिशन
एंड रेस्ट ऑफ द 30% इज योर वर्कआउट। तो लोग वर्कआउट भी 30% की तरह ही करते हैं एंड न्यूट्रिशन 70% की तरह करते हैं। बट ये आपने पॉइंट एक्चुअली में सही कहा, you have to give your 100% in your workout and 100% in your nutrition as well. Because अगर दोनों ही में आप अगर एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। So that is actually a good point. So one more thing I want to add in this that it is actually 100% rest, 100% nutrition and your 100% sleep as well. अगर आप अच्छी नींद ले रहे हो, अच्छा आराम कर रहे हो, साथ में अपना वर्कआउट भी अच्छा चल रहा है एंड उसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन भी सही है, तो आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे से मिल सकता है मैम इससे। हाँ, एक और चीज है मैम, काफी सारे लोग जो होते हैं वो या तो फेक डाइट पे रहते हैं जिन्हें वेट लॉस करना है, जो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के लिए डाइट मतलब भूखे रहना होता है। अगर हम कभी भी किसी को कहते हैं कि आपको डाइट पे रहना है तो लोग यही समझते हैं कि उन्हें भूखा रहना है। बस यही गलती होती है कार्तिक, यही गलती कर देते हैं लोग, डाइट का मतलब लगा देते हैं भूखा रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। डाइट का मीन ही खाना है। डाइट का अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे तो उसका मतलब ही खाना आएगा, तो आप भूखा क्यों रह रहे हो। एक्चुअली हवा हो गया है कि डाइट मतलब भूखा रह के आपको पतला होना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रॉपर खाना खाइए आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, और उसको हल्का सा डेफिशिट में, जो भी आपका कैलोरी इनटेक है उसमें हल्का डेफिशिट लेके आप इजीली फैट लॉस कर सकते हो। तो उसमें आपको भूखा रहने की या किसी भी लिक्विड डाइट पे जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन लोग क्या है ना, लोगों के लिए मतलब एक हो गया, अगर खाते भी है तो ठीक है कैलोरीज काउंट करके खाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इनटू सैलेड डाइट्स या कुछ मतलब सैलेड खा लिया है तो सिर्फ वेजीज खा लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स पे रहते हैं, फैट एकदम अवॉइड कर देते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स कम लेंगे या तो फैट काफी कम लेंगे। तो ये करना क्या सही रहता है मैम? नहीं, बिल्कुल आपको कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट बिल्कुल कम नहीं करना है। सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आप पूरे लोगे तभी बॉडी में। जी मैम। के लिए आपको मैक्रोज चाहे फैट हो चाहे प्रोटीन हो, चाहे आप किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, तो आप प्रॉपर इंटेक में लेना है। और आजकल ऐप्स हैं, हमारे ऐप में भी आप कर सकते हो कैलोरी काउंट, अपना इंटेक निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये सब चीजें तो सेकेंडरी है। फर्स्ट ये है कि आपको प्रॉपर खाना खाना है। भूखा रहिए और सैलेड पे, जूस पे, इन सब पे थोड़ी आप सर्वाइव कर सकते, कितने दिन करोगे। और ना उससे आप जैसे इसमें वेट लॉस करते हो, फिर फैट लॉस नहीं होता, और जैसे ही आप कुछ खाओगे तो रिगेन होता है। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर न्यूट्रिशन बेस्ड फूड खाएं और हमें सस्टेनेबल डाइट फॉलो, जिसको आप इजीली फॉलो कर सको। जी मैम। एक क्वेश्चन आया मैम, अभी जस्ट आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन पॉप अप हुआ है। परिता ने पूछा है कि उनका जो बेबी है 8 महीने का है, तो वो क्या she can go for a diet and I think वो diet that means workout भी करना चाहेगी। Of course she can do both diet and workout obviously, क्योंकि 1 महीने का बेबी है तो वो ऊपर से भी खाना खा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। वो इजीली डाइट फॉलो कर सकते हैं एंड वर्कआउट भी इजीली कर सकते हैं, उल्टा अच्छा फील करेंगे ये। ओके ग्रेट। सो अभी हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस से, जो हमारे क्लाइंट्स ने हमको कुछ पूछा था, जो मतलब जो हमें हमारे फॉलोअर्स से उन्होंने पूछा था, और उनमें से एक क्वेश्चन था कि जो डाइट एंड एक्सरसाइज है, ओके, वो वेट लॉस जर्नी के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है या कोई एक चीज करेंगे तो हमारा मतलब उसमें बेनिफिट है। जैसे अभी ये आंसर तो आपने दे दिया, बट एक जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था इस तरह के, वेट लॉस करना है तो डाइट और एक्सरसाइज करना जरूरी है, अगर जरूरी है तो क्यों है, क्या आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम? हाँ देखो कार्तिक, वेट लॉस या फैट लॉस जो भी है हम इजीली कर सकते हैं विदाउट वर्कआउट के, थोड़ा एक्टिविटी लेवल आगे बढ़ा के। लेकिन क्या होता है ना, अगर आपको मसल्स प्रिजर्व करने हैं, फैट लॉस को और प्रमोट करना है, तो आपको वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी शेप में आएगी, नहीं तो फैट लॉस करने से सिर्फ आप पतले दिखोगे, फ्लैट हो जाओगे नो डाउट, लेकिन आपको जो शेप चाहिए अपने गोल के अकॉर्डिंग, जो आप देखते हो मुझे ऐसा होना है, के लिए आपको वर्कआउट नीड्स है और ये वर्क करता है बस। एग्जैक्टली यही चीज है। तो ऑल द लेडीज आप जरा ध्यान से सुनिए कि अगर आप सिर्फ डाइट कर रहे हो तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट रिजल्ट मिलेगा तो सिर्फ वेट लॉस के केसेस में मिलेगा, लेकिन आपकी बॉडी काफी शेपलेस होगी, आप शेप में नहीं दिखोगे, जो शेप आप अचीव करना चाहते हो वो आपको अचीव नहीं होगा। सो डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों ही साथ में करिए, और अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो तो डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप भी शायद अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाओ, लेकिन आप वैसे शेप में नहीं आ पाओगे जैसे आप आना चाहते हो।
सो डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मैम जो डॉली ने पूछा था। सो डॉली ने ये पूछा था कि हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग्स ड्यूरिंग वेट लॉस पीरियड एंड हाउ टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेशन से ज्यादा इन सब चीजों में डिसिप्लिन जरूरी होता है डॉली, या कोई भी हो जो फैट लॉस या फिटनेस में आना चाहता है या खुद को फिट करना चाहता है, उसके लिए एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन तो बाद में आता है, ये सब चीजें होगी, मोटिवेशन होगा तो इजीली आप क्रेविंग सब चीजें छोड़ दोगे। और फिर भी होता है तो इतना अच्छा रेसिपीज वगैरह होती है आजकल, तो आप कुछ भी बना के खा सकते हो। मैंने अपने ऐप में, अपने यूट्यूब चैनल में भी डाली है, थोड़ा टेस्टी फूड बना के खाओ। ऐसा नहीं है कि सारे दिन आपको सलाद उबाल के खाना है, ऐसा तो है नहीं। इतने अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं आपको डाइट प्लान में, आप चावल रोटी सब्जी कुछ भी खा सकते हो, तो उसमें क्रेविंग बची कहाँ। आपका पेट फुल रहता है तब क्रेविंग नहीं होती है। क्रेविंग मोस्ट ऑफ टाइम तब होती है जब आप क्रैश डाइट पे जाते हो, भूखे रहते हो, तब क्रेविंग होती है। अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो तो क्रेविंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। एग्जैक्टली तो इन केस इन शॉर्ट आपको मतलब यही समझना है कि आपको भूखे नहीं रहना है। अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, हेवी लिफ्ट कर रहे हो, तो उस वर्कआउट के लिए आपको एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे हो तो फिर आपको जो मनचाहा रिजल्ट है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी पे ऊपर ले रहे हो और अगर आप वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना जो बॉडी शेप है वो अचीव कर पाओगे। आई मीन काइंड ऑफ लाइक दिस मैम, जैसा आप जो कहना चाह रहे थे मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। कैलोरी डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट और जो कैलोरी सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे मैम, कैलोरी डेफिसिट एंड सरप्लस। ऑफ कोर्स, जो मेंटेनेंस लेवल है आपकी कैलोरीज का, अगर आप सरप्लस दे रहे हो तो आप थोड़ा वेट गेन करोगे, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप डेफिशिट में जाते हो तो बहुत ज्यादा डेफिशिट नहीं जाना है। अगर आप हल्का सा 100 कैलोरी डेफिशिट रहते हो मेंटेनेंस से तो आप इजीली वेट लॉस करते हो, तो उसमें आपका एनर्जी लेवल ठीक भी रहता है और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन वर्कआउट जरूरी है इन सब चीजों के साथ। नहीं कर पाते हो तो बात अलग है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो भी रिजल्ट मिलता है। आप घर पे करने की ट्राई कीजिए। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप चाहे घर पे करो लेकिन वर्कआउट जरूर करो। जी हाँ, एक और क्वेश्चन था जो आशीष ने पूछा था कीटो के बारे में। क्या कीटो एक्चुअली हेल्प करता है वेट लॉस में? जो मतलब वेट लॉस में तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प, बट क्या कीटो करना चाहिए सर्कमस्टेंसेस में? आपका क्या कहना है कीटो के बारे में? फॉलो करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि एक स्ट्रेटेजी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है डाइट में आपको फॉलो करने के लिए, तो वो वर्क करती है अलग अलग। और कीटो है ये थेरेपी टाइप काम आती है, जैसे वो माइग्रेन और ये अमीरगी जैसे बीमारी होती है उसको सजेस्ट करते हैं जी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। हेल्दी डाइट हमेशा वही होती है जो आप सस्टेन कर सको लंबे टाइम तक, इजीली फॉलो कर सको, आपके दूसरे काम नहीं रुके जिसके पीछे, वो हेल्दी डाइट होती है जी। एक और क्वेश्चन है जो ध्वनि ने पूछा है। और कीटो में ये भी है कि इसमें एक दो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, तीसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं है। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने बहुत जरूरी है खाने में। और इंडियन फूड में सब चाहिए अपने को, कार्ब्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। डेफिनेटली। एक क्वेश्चन पॉपअप हुआ है जो ध्वनि ने पूछा है। सो ध्वनि पूछ रही है कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग? गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। अगर आपको खाना खाने का या बनाने का अलग अलग टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 मील में सेट कर लीजिए अपना। यही होता है, बैलेंस होता है फास्टिंग आवर्स और फीडिंग आवर्स, बस कुछ नहीं होता है इसमें। आप जैसे 3 टाइम 4 टाइम खाना मत खा के 2 टाइम खाना खा लो, ये हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग जी। सो ओके, ठीक है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन बी डन आल्सो, कीटो भी कर सकते हैं, बट दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज जो वेट लॉस में काम आती है। बट आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए, आई पर्सनली बिलीव कि एक जो नॉर्मल डाइट है जो हमारे कल्चर के हिसाब से बना है, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर आप अपना नॉर्मल डाइट छोड़ के कोई एकदम फैंसी डाइट कर रहे हो तो वो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। कुछ टाइम बाद आप ऐसा होगा कि वो उस चीज को आप छोड़ दोगे या तो फिर वापस से अपना नॉर्मल डाइट पे आ जाओगे। सो इट्स बेटर कि नॉर्मल डाइट को ही हेल्दी बनाइए, जो आप खाते हो घर पे उसी को आप हेल्दी ऑप्शन दीजिए, तो वो सबसे आपके लिए बेस्ट है। एक और लास्ट क्वेश्चन है मैम, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, स्पॉट रिडक्शन के बारे में। सो स्पॉट रिडक्शन, वी ऑल नो दैट स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल लोग नहीं समझ पाते
दे आर स्टिल डूइंग दिस एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, क्रंचेस हो गया, leg raises हो गया, सिर्फ पेट को कम करने के लिए करते हैं। तो मैम आपका क्या कहना है उसमें? बस यही है कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आपको ओवरऑल बॉडी फैट डाउन करना ही पड़ेगा अगर आपको परिचित होना है तो। आप सिर्फ गाल से, सिर्फ बाइसेप से या सिर्फ पेट से चर्बी कम नहीं कर सकते। चाहे क्रंचेस, चाहे आप 400 करो चाहे 1000 क्रंचेस करो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट तब आता है आप अगर ढंग का खाना खाओगे, आपकी कैलोरीज अगर Yes. प्रॉपर है, कैलोरी इंटेक अच्छा है और आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो, तो आपको कोई अलग से नीड नहीं है क्रंचेस वगैरह करने की, आपको इजीली रिजल्ट मिलेगा। तो जी। स्पॉट एडिक्शन के लिए मत भागो, नॉर्मल आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो और ओवरऑल बॉडी फिट करने के लिए वर्कआउट करो। जी डेफिनेटली मैम। अब बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स के केसेस में तो यही होता है कि जिनको वेट लॉस करना आता है, अगर कोई जिम की मेंबरशिप परचेज करने भी आता है, तो उनका वर्कआउट पहले से दिमाग में होता है लाइक मुझे सिर्फ ये काम करना है तो मैं सिर्फ एब्स लगाऊंगी, कार्डियो करूंगी, तो मुझे वेट नहीं बढ़ाना, मैं वेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो ये आपने जो पॉइंट एनलाइटन किया आज, जितने भी आपने पॉइंट्स वेट ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ जो भी बेस्ट है वो बस किए, आई एम श्योर कि इसके बाद जितनी भी लेडीज है उनको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेगी, थोड़ा सा इंस्पायर होंगे आपसे, मोटिवेटेड फील करेंगे और जिम में जाकर अपनी मेंबरशिप को वेस्ट नहीं करेंगे। बस यही सो है। दिस इज व्हाट आई फील कि एवरी वुमन शुड लिफ्ट वेट्स एंड दे शुड लिफ्ट हेवी वेट्स। इनफैक्ट मैंने आपको भी देखा आपकी वीडियो में, आप सॉरी कार्तिक, फिर आवाज आपकी नहीं वीडियो में मैंने आपको आवाज आ रही मैम? हाँ अब आई। ओके, सो मैंने आपके वीडियो में भी आपको देखा है, आप कुछ स्क्वाट लगा रहे हो, यू आर डूइंग सम 3 रैप मैक्स और समथिंग, सो कुछ वो, 75 kg। तो दैट वाज रियली ऑसम एंड इनफैक्ट जो आपका स्क्वाट्स था, आपकी जो फॉर्म थी, दैट इज अमेजिंग। बहुत सारे लोग जो होते हैं स्क्वाट लगाते हैं वो पूरा बैठ के नहीं है, डीप स्क्वाट्स नहीं लगाते, आई मीन जॉब इज यू आर लाइक दिखता है मैम कि काफी समझते हैं। इन सब के लिए बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है और ये सब मैंने अपने हस्बैंड के अंदर में सीखा है। वो वर्कआउट के लिए उन्होंने ही हमेशा मुझे गाइड किया है, तो जो भी सीखा परफेक्ट सीखा, क्योंकि वो हमेशा परफेक्शन पे ही ध्यान देते हैं। दैट्स रियली परफेक्ट मैम। जाते जाते आई मीन आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंसेस को? आपको हमेशा हेल्दी खाओ, फिट रहो और वर्कआउट जरूर करो। वर्कआउट करने से कभी वेट गेन नहीं होता है और ना ही आप मेनली लुक लाइक हो जाओगे, आप ऑसम ही दिखोगे ऑब्वियसली। और दूसरी बात, एक्टिव रहो। जी जी, ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये टाइम दिया एंड आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपका लाइव में ऐसा आपको क्वेश्चन आंसर कर सकूं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और ये मैं पहले से ही करना चाहता था कि मैंने जब से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे मैंने पहले से ही ऑडियंस को बताया कि मुझे आपको कैसे मतलब जानने मिला मुझे आपके बारे में। सो इट्स लाइक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल से फिर मैंने सोशल मीडिया पे आपको देखा, फिर सोशल मीडिया में आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू, I was like impressed with your transformation and whatever you're doing, आप जो भी मतलब अवेयरनेस पैदा करो फिटनेस के बारे में, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, that is actually remarkable मैम। So I really respect you and आप ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए, लोगों को फिट करते रहिए and thank you so much मैम, thank you so much। So I am ending this session now। I hope कि हम कभी किसी और टॉपिक में डीपली डिस्कस करेंगे and मुझे काफी अच्छा लगा। So thank you so much ma'am, I'm ending this session now। I'll see you around then।